मुझे खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है कि आज फिर एक बार हिंदी राजवंशी बाइबल स्टडी में आप लोग जुड़ पाए हैं। তো মুই খুশি হসং যে আজি আরেকবার হিন্দি আর রাজবংশী বাইবেল স্টাডি তোমরা সবাই আছেন। और ये हमारा प्रार्थना है और प्रभु का इच्छा भी ये है कि राजवंशी बोलने वाले लोगों से भी लोग उसके पास आए। আর এটাই আমার প্রার্থনা যে রাজবংশী ভাষা যায় যায় কথা কয় তোমরাও প্রভুর কাছে আসি পাই। हम लोग इब्रानी का तीसरा अध्याय को देखने वाले हैं आज। তো আজি আমরা ইব্রিয়র তৃতীয় অধ্যায় দেখবো। और हम लोग इब्रानी का पुस्तक का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। আর আমরা ইব্রিয়র বইয়ের আমরা কিভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করেছি। और बहुत दिन से हम लोग इस अभ्यास को जारी कर रहे हैं और हम लोग आज दोबारा इस तीसरा अध्याय से कुछ बातों को देखने वाले हैं। আর আমরা এই ইব্রিয় বইটা অনেকদিন থেকে অধ্যয়ন করেছি। তো আজি আরো আমরা এই ইব্রিয় বইটা অধ্যয়ন করব। तो आइए हमारे साथ तीसरा अध्याय में हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। তো আজকে আমরা ইব্রিয় বইয়ের চ্যাপ্টার 3 1 থেকে 10 পর্যন্ত পড়ব। হে মোর পবিত্র ভাই বইনীলা, তোমরা যায় যায় স্বর্গের অধিকারী হবার বাদে উহার ডাকো ছাড়া দিছেন, তোমরা যিশুর বিষয়ে মনোযোগী হন। উহাই হামাল্লার খবরিয়া আর মহাবামন, আর যায় যায় উহাক নিযুক্ত করিছে সেই ভগবানের উহাই বিশ্বস্ত আসিলে। মসিও ভগবানের ঘরের মানছিলার দেখাশোনার কামত শ্রী মসিও বিশ্বস্ত আসিলে, তেমন যিশু যাই নিযুক্ত করিছে সেই ভগবানের উহাও বিশ্বস্ত আছিলে। জেলা কাঙো ঘর বানায়, সেলা ঘরটা চায়া ঘর বানাইয়া বেশি সম্মান পায়, সেই বাদে ভগবান মসির চায়া যিশুক আরো বেশি সম্মান দিছে। প্রতিটা ঘর কাও না কাও গোড়ায়, কিন্তু যায় সব কিছুই গোড়াইছে উহাই ভগবান। সুতরাং মসি ভগবানের ঘরের সেবাকারী হিসাবে বিশ্বস্ত আছিলে, যাতে ভবিষ্যতে যেইলা কোয়া হবে সেইলা সম্বন্ধে উহাই সাক্ষী দিবে। কিন্তু খ্রিস্ট সেই ঘরের দায়িত্ব পায়া বেটা হিসাবে বিশ্বস্ত আসিলে। হামাল্লার নিশ্চিত আসার ফলে মনের যে সাহস আর আনন্দ আসে, উহাতে যদি শেষ পর্যন্ত স্থির থাকি তাহলে দেখা যায় যে আমরাই ভগবানের ঘর। এই বাদে পবিত্র আত্মা কইছে, আজি তোমরা যদি উহার ডাক শুনেন তাহলে তোমাল্লা 14 গোষ্ঠীর মতন অন্তর পাষাণ না করেন, যেই নাখান ইসরায়েলিলা বিরোধিতা করেছিলে। তোমরা নিধুয়া পাথারের মধ্য বিরোধী হইয়া মুখ যাচাই করেছিলে, পরে কিনা 40 বছর ধরি ওই সময়ের মানছিলা মোর আচানক কাম দেখিছিলে, তাও আমরা মুখ যাচাই করিয়া বিরক্ত করছিলে। এই বাদে মুই উমার উপর খুব বিরক্ত হইয়া কইছিলুম, এই মানছিলা সব সময় বেয়া চিন্তা করে, মোর ঘাটা বুঝির পায় না। ওকে আঙ্কেল, 10 ফিনিশ। और 11 भी पढ़ लेंगे। এই বাদে মুই গুসা হইয়া কইছিলুম, মোর দেওয়া জিরানের জায়গা তোমরা সন্দেহ পাবে না। थैंक यू जयब्रतो। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ चेतावनी को देखने वाले हैं। আর আমরা এটা কিছু সাবধান বাণী দেখবো। अभी हमने पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ा, लेकिन इस पूरे अध्याय पर ध्यान करने वाले हैं। তো আমরা তো গোটায় অধ্যায়ক আমরা দেখি নাই, তো তাও আমরা এই গোটায় অধ্যায়ক দেখার চেষ্টা করবো। और समय ना होने के कारण हमने बस 11 पद को हमने पढ़ा। আর সময়ের সংকটের জন্য আমরা খালি 11 পদ পড়ছি। लेकिन हम लोग इस अध्याय से कुछ चेतावनी को देखने वाले हैं और कुछ उत्तेजन भी हम लोग देखने वाले हैं। আর আমরা এই অধ্যায় থেকে কিছু সাবধানী আর কিছু উত্তেজনা বাক্য দেখবো। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चेतावनी को देखेंगे। সবার প্রথমে আমরা কিছু সাবধান বাণী দেখবো। तो अभी 8 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो अपने मन को कठोर ना करो, ऐसा वो पहले लाइन में लिखा है।
আর 8 পদত লেখা হয়েছে, তোমরা তাহলে তোমরা আল্লাহ 14 গোষ্ঠীর মতন অন্তর পাষাণ না করেন। और 15 पद भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। আর 15 পদত এরকম কোয়া আছে, আজি তোমরা যদি উহার ডাক শুনেন তাহলে তোমাল্লার 14 গোষ্ঠীর মতন তোমাল্লার অন্তর পাষাণ না করেন। अभी 4 अध्याय और 7 पद में भी वही बात को दोहराया, ऐसा लिखा है। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उस आज का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। আর 4-এর 7 পদত এরকম লেখা আছে যে, আজি তোমরা যদি উহার ডাক শুনেন তাহলে তোমাল্লার অন্তর পাষাণ না করেন। तो यहाँ पर एक लाइन जो बार बार आ रहा है वो ये है कि तुम अपने मनों को कठोर ना करो। তো এই অধ্যয়নত একটা লাইন বারবার এসেছে যে তোমরা তোমাল্লার অন্তর পাষাণ না করেন। और ये इंग्लिश में हमने यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। আর ইংরেজিতে লেখা আছে ডু নট হার্ডেন ইউর হার্ট। तो ये हार्ट या जो हृदय के बारे में यहाँ पर हम लोगों को कुछ देखना है। আর আমার এই অন্তরের বিষয় কিছু দেখিমু। क्योंकि हमारा अंतःकरण या हृदय जो है ये एक पत्थर के तरह एकदम हार्ड हो सकता है। আর আমার যে অন্তর আছে এটা পাথরের মতো শক্ত হবার পায়। तो यहाँ पर लेखक जो इब्रानी का पुस्तक लिख रहा है वो हमको ये चेतावनी दे रहा है कि जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, कभी कभी वो अपना हृदय को कठोर या एकदम सख्त बना देता है। আর এই ইব্রো বইয়ের যে লেখক লিখিছে যে যাই প্রভুর বাক্য শুনে ওয়ে কোনো সময় ওর অন্তরক শক্ত করে ফেলায়। और क्या हो रहा है कि इब्रानी का लेखक जो है वो देखता है कि पहला पीढ़ी जो है वो अच्छे थे, लेकिन दूसरा पीढ़ी जो आ रहा है वो अपने हृदय को कठोर कर रहा है। जो প্রথম আঙ্কেল জেনারেশন না जनरेशन, यस। প্রথম প্রথম हिंदी में पीढ़ी बोलते हैं, मतलब मेरा बाप दादा। প্রথম পূর্বপুরুষ তো ঠিক ছিল, কিন্তু যে পরবর্তী পূর্বপুরুষ এসেছে উমার হৃদয় পাষাণ করেছে। तो वो उनको ये चेतावनी दे रहा है कि तुम अपने हृदय को कठोर मत करना। जो तुम्हारे बाप दादा सुनते थे, लेकिन तुम लोग अभी नहीं सुन रहे। তো যে নতুন প্রজন্ম এসেছে উমাক চেতবাণী উমাক সাবধান বাণী দিচ্ছে যে তোমার বাপ দাদা গুলা শুনেছিল, কিন্তু তোমরা কঠোর না করেন। तो ये हृदय जो है कभी कभी लोग कठोर कर देते हैं। তো এই অন্তর যে আছে কোনো সময় মানসি পাষাণ করে ফেলায়। और कभी कभी हम अपने माँ बाप का बातों को भी नहीं सुनता। वो लोग बोल रहे हैं हमको कुछ अच्छे बातें, लेकिन मैं अपना हृदय को कठोर करता हूँ। मैं अपना माँ बाप का बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ। কোনো সময় আমরা বাবা মার কোথাও শুনি না, যে আমার হৃদয় অন্তর পাষাণ করে ফেলায় এবং বাবা মা কি কয় ভালো এটা করি ওইটাও করি না। अभी यहाँ पर दोबारा हृदय के बारे में हम लोग 12 पद में देखते हैं। আর এটা আমরা আরো 12 পদ হৃদয় সম্বন্ধে দেখব, মন সম্বন্ধে। तो यहाँ पर 12 पद में ऐसे लिखा है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। ও ভাই বোনিলা সাবধান, তোমার মধ্যে কাঙড় অন্তর যাতে বয়া আর অবিশ্বাসিনী না হয়, এই নাখান অন্তর জীবন্ত ভগবানের থাকি দূরত ছড়ি যায়। तो यहाँ पर अविश्वासी मन के बारे में बोल रहा है। আর এটাকে না অবিশ্বাসী অন্তরের কথা কছে। और ऐसा भी हमारा हृदय हो सकता है ये खराब या एकदम भ्रष्ट हो सकता है।
তো আমার অন্তর এরকম হবার পায় একদম খারাপ এবং একদম দুষ্ট। हाँ, तो दो चीजें बुरा और दूसरा है अविश्वासी। এখানে ২ টা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে খারাপ আর দ্বিতীয় হচ্ছে অবিশ্বাস। तो ये मेरा हृदय के साथ एक युद्ध चल रहा है আর এইটা মোর অন্তরের সাথে একটা যুদ্ধ চলেছে। और शैतान तुम्हारा हृदय पर कब्जा करना चाहता है। আর শয়তান আমার হৃদয়ক অন্তরক কব্জা করিতে আছে। और तुमको बुरे चीजों में वो तुमको ले जाना चाहता है। আর শয়তান আমাক খারাপ জিনিসের প্রতি ধরি যাওয়ার চান্দাছে। और नौजवान लोग ये बहुत अच्छे रीति से जानते हैं कि मेरा हृदय जो है कभी अच्छा है तो कभी कभी वो बुरा भी करता है। আর এই নতুন লোক জোয়ান লোক জানে যে আমার হৃদয় কোনো সময় ভালো কিন্তু কোনো সময় খারাপ জিনিস করে ফেলে। और ये युद्ध जो है मेरे हृदय मेरे अंतःकरण में हो रहा है। আর এই যুদ্ধটা আমার অন্তরে চলেছে। तो यहाँ पर वो लेखक हमको सावधान कर रहा है, देखो तुम्हारे हृदय में एक युद्ध चल रहा है। আর এটাই লেখক আমাক সাবধান করে দিয়েছে যে দেখো তোমার হৃদয় আমার অন্তরত যুদ্ধ চলেছে। और तुम्हारा हृदय बुरा हो सकता है और एक अविश्वासी हृदय बन सकता है। আর আমার অন্তর খারাপও হবার নোংরা হবার পায় এবং অবিশ্বাসীও হবার পায়। और देखो वहां 19 पद में भी दोबारा अविश्वासी के बारे में लिखा है कि सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। আর 19 পদ অবিশ্বাসের বাধাই উমরা ভগবানের দোয়া জিরানের জায়গা যাবার নাই। तो हम लोग अविश्वासी नहीं बनना चाहिए। আর হামাক অবিশ্বাসী হওয়া নাই বানানো चाहिए। हाँ, नहीं बनना অবিশ্বাসী चाहिए হওয়া না লাগবে। क्योंकि शैतान जो है हमको बहुत ही संदेह में डाल सकता है। কেননা শয়তান যে আছে ও হামাক অনেক সন্দেহের মধ্যে নিয়ে যাবে। और जब मैं संदेह में चला जाता हूँ और मेरा हृदय जब भ्रष्ट हो जाता है तो 10 पद में क्या हो जाता है, देखो 10 पद में ऐसा लिखा कि इस कारण मैं उस समय के लोगों से रुटा रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। আর আমরা 10 পদে লেখা আছে এই মানসিক সব সময় বইয়া চিন্তা করে মোর ঘাটা বুঝির পায় না। हाँ, तो मन क्या हो जाता है, भटकने लगता है। আর মন কি হয়ে যায় আমার সবসময় বইয়া খারাপ চিন্তা করতে থাকে। भटकना मतलब दूर चला जाता है। মানে মন আমার অন্যতে ঘুরে বেড়ায়। हाँ, मन सदा भटकते रहता है। মন সবসময় চঞ্চল হয়ে বেড়ায়। तो क्या होता है, अभी देखो अभी 6:30 बजे बाइबल स्टडी होना चाहिए। हमको मालूम है बुधवार का दिन 6:30 बजे बाइबल स्टडी है। আর আমরা জানি যে বুধবার 6:30টার সময় বাইবেল অধ্যয়ন আছে। लेकिन जो अविश्वासी मन है, जो खराब मन है, वो बोलेगा अरे छोड़ दो बाइबल स्टडी, भटक लेंगे, दूर चले जाएंगे। আর যেটা অবিশ্বাসী মন কয় যে চলো বাদ দাও, চলো অন্যতে চলো। अरे अभी तुम्हारा डेटा बैलेंस नहीं है, छोड़ दो, क्यों जाएंगे वहां पर। হ্যাঁ আর এলা আমার डेटा बैलेंस নাই, বাদ দাও অন্যতে চলো। दूसरा कुछ समस्या आ जाएगा, बोलेगा नहीं अभी कुछ ना कुछ कारण से मैं उस मीटिंग पे नहीं जा सकता हूँ। আর অন্য কোনো সমস্যা চলে আসবে যে কোনো না কোনো কারণে আমরা এই অধ্যয়নে জড়িত পাবো না। तो मन क्या है, भटकता रहता है, दूर चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह से दूर जाता है। আর মন সবসময় এটা ওটা ঘুরে বেড়ায় আর প্রভু যিশুর থেকে অনেক দূরে চলে যায়। और काइन के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि काइन ने जब अपने भाई का हत्या किया, আর কাইনের জীবন থেকে দেখি পাই আমরা যে কাইন জেলা ওর ভাইক
হত্যা করছে। परमेश्वर उसको बुलाने का कोशिश करे, तुम वापस आओ, मन फिराओ। আর ঈশ্বর উহাক দেখাইছে যে কইছে যে তুই মন ফিরে আয়। लेकिन अगर आप वो उत्पत्ति आदि पुस्तक का 4 अध्याय को अगर ध्यान से देखेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि काइन परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर की दृष्टि से दूर चला गया। আর উৎপত্তি চ্যাপ্টার 4 আছে যে কাইন ছিল যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনেক দূরে চলে গেছে। मतलब परमेश्वर के पास, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहिए। যে অনেক দূরে চলে গেছে, যে ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের কথা শুনে না। तो ऐसा हमारा हृदय बन जाता है, हमारा अंतःकरण जो है भटकने लगता है। তো এরকম আমার অন্তর পাষাণ হয়ে যায় আর অনেক চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। और उसी इब्रानी 3 अध्याय और 10 पद में ये भी लिखा है कि हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। আর এইবারে ঈশ্বর কয় যে ইমার মন সবসময় চঞ্চল, যেটা সেটা ঘুরে বেড়ায়, আর এই বাদে মোর রাস্তা ইমা চিনি পায় নাই, বুঝির পায় না। तो ये भी एक हमारा मन का एक कमजोरी है। আর এইটাও একটা আমার অন্তরের কমজোরি। मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह का वचन रखना जरूरी है। আর আমার অন্তরত প্রভু যিশুর বাক্য রাখা খুবই দরকার। वो वचन को मुझे बाय हार्ट मुखस्त करना चाहिए। আর এই বচনক আমার মুখস্থ করা দরকার। तब जब वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है तो मैं परमेश्वर का मार्ग को पता चलता। আর জেলা প্রভু যিশুর বাক্য আমার অন্তরত থাকবে, সেলা আমরা দেখি পাবো যে প্রভুর রাস্তা দেখি পাবো। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय से बात करने लगता है। কেননা প্রভুর বাক্য আমার হৃদয়ত কথা কয়। तो हमको परमेश्वर का वचन जानना, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। আর আমার প্রভুর বাক্য জানির এবং পড়ির খুবই দরকার। तो অবশ্যই। इस प्रकार से हृदय के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि हृदय जो है वो कठोर हो सकता है। আর এইরকম করে আমরা দেখি হৃদয়ের সম্বন্ধে দেখেছি যে হৃদয় অন্তর পাষাণও হবার পায়। और वो 12 पद में हम लोग हृदय क्या हो जाता है कि बुरा और अविश्वासी वो हृदय हो सकता है। আর 12 পদে লেগেছে আমার অন্তর বয়া এবং অবিশ্বাসী হয়ে যাবার পায়। और 10 पद में हम लोग देखा कि वो हृदय जो है या मन जो है दूर भटकने लगता है। আর 10 পদ আর মন খারাপ চিন্তা আর অনেক দূর ঘুরে বেড়ায়। और उसी 10 पद में ये भी दिखता है कि हमारे मन में जब वचन नहीं रखते हैं तो परमेश्वर का रास्ता भी हम लोग भूल जाते हैं। আর যেটা প্রভুর বাক্য আমার অন্তরত থাকে না, সেটা আমরা প্রভুর রাস্তা ভুলে যাই। तो इसका नतीजा, परिणाम क्या होगा? আর এর পরিণাম কি হবে? तो ये यहाँ पर हम लोग अभी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले वो 11 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। আর আমরা 11 পরে দেখুন যে পরমেশ্বরের রাগ আমার উপর আছে। तो परमेश्वर का गुस्सा बहुत ही भयानक है। আর প্রভু পরমেশ্বরের রাগ খুব ভয়ানক, ভয়ঙ্কর। और हम लोग याद करते हैं जब परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में, इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए बोला, तो परमेश्वर का क्रोध मिस्र देश पर गिर गया। আর আমার মনে আছে যে মসি জেলা মিশর দেশ থেকে ইসরায়েলি গুলা বাইর করে আনি চাইছে, তো সেই সময় ঈশ্বরের রাগ সেই মিশর দেশের উপর পড়ে গেছে।
और परमेश्वर का क्रोध कितना भयंकर है, वहां से भी हमको वो दृष्टि को हमको मालूम है। আর পরমেশ্বরের রাগ কতটা ভয়ঙ্কর আমরা সেই মিশর দেশে দেখিয়া বুঝি পাই, সেই ঘটনা দেখিয়া। और यूहन्ना 3:19 में यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो उनके ऊपर दंड का आज्ञा है। আর যখন 3 অধ্যায় দেখি পাই যে যাই প্রভু যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে না উহার উপর দণ্ড আছে বা শাস্তি আছে। तो परमेश्वर का क्रोध हमारे पूरे संसार के ऊपर गिरने वाला है। আর পরমেশ্বরের রাগ এই পুরা দুনিয়ার উপর পড়বে। लेकिन उस क्रोध से और उस राग से बचने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। আর সেই ঈশ্বরের রাগ আর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য প্রভুই একটা রাস্তা বানিয়ে দিছে। और उसने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। আর ওর বেটা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই দুনিয়াত পাঠাইছে, আর সেই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার জন্য সেই ক্রুশত আমার জন্য মারা গেছে। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उस क्रूस पर गिरा। আর সেই প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর সেই পরমেশ্বরের রাগ সেই ক্রুশের উপর প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর পড়িছে। और प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो मैं परमेश्वर का अनंत काल का क्रोध से मैं बच सकता हूँ। আর আমরা যদি এটা বিশ্বাস করি যে আমার পাপের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর পরমেশ্বরের রাগ আসে, তো আমরা বাঁচি যাবো, সেই অনন্তকালের রাগের থেকে বাঁচি যাবো। तो ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर का अनुग्रह आज मैं पा सकता हूँ अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं। তো এইটা অনুগ্রহের সময় চলেছে, যদি আজই আমরা বিশ্বাস করি তো পরমেশ্বর অনুগ্রহ আমরা পাবো। तो अगर आपने विश्वास नहीं किया तो समय है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। তো তোমরা যদি বিশ্বাস না করেন তো আজও সময় আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আমার উদ্ধারকর্তা হিসাবে স্বীকার করে নেবে। और अगर मैं उसको नहीं स्वीकारूंगा तो यहाँ पर 11 पद में ऐसा लिखा है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाए कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। আর আমরা যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস না করি তাহলে প্রভুর ক্রোধ আমার উপর আসিবে যে মোর দেওয়া জিরানের জায়গা তোমরা সন্দেহ পাবে না। हाँ, तो ये विश्राम का जगह जो परमेश्वर ने रखा है उसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। আর এই বিশ্রামের জায়গা যেটা পরমেশ্বর আমার জন্য বানাইছে সেটা আমরা ঢুকির পাবো না। देखो, ये विश्राम सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग पहुंचना, वो विश्राम सिर्फ नहीं है यहाँ पर। আর যে মারা যাওয়ার পরে স্বর্গ যাওয়া এইটা বিশ্রাম, শুধু এইটা বিশ্রাম নয়। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया निश्चय वो आराम, वो स्वर्ग पाएंगे वो लोग। আর যাই প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করছে ওই নিশ্চয় সে মারা যাওয়ার পর স্বর্গ যাবে। लेकिन जो अविश्वासी है यहाँ पर इस पृथ्वी में भी उनको कोई आराम मिलने वाला नहीं है। আর যারা অবিশ্বাসী আছে যে ওই এই পৃথিবীতেও কোনো আরাম বা শান্তি পাবে না। और वो उदाहरण हम लोग बार बार देखने को मिलता है इस दुनिया में। আর সেইটা উদাহরণ আমরা বারবার দেখি পাই এই পৃথিবী দুনিয়া। और जरा सोचो, जो चोरी करता है, बार बार चोरी करता है, उसका जीवन क्या आराम से है क्या? আর যাই বারবার চোর করে ওর জীবন কি আরামত আছে? उसको हमेशा चिंता रहता है कि कब पुलिस मेरे दरवाजे पे खटखटाएगा। আর ও সবসময় ও চিন্তা থাকে যে পুলিশ কতদিন আসিয়া মুখ ধরবে। जो खूनी है, जो बहुत सारे खून किया, वो क्या आराम का जीवन जी रहा है क्या यहाँ इस पृथ्वी में? আর যাই খুন করে ও কি এই পৃথিবীতে আরামে শান্তিতে থাকিবে? उसका भी यही चिंता है कि कौन कब मेरा बदला लेने के लिए, जिसका मैंने खून किया उसका परिवार का या कोई रिश्तेदार आके मेरा बदला ले लेंगे, उसका भी चिंता वो करता रहेगा। আর যাই খুন করছে ও সবসময় চিন্তা করে থাকে যে মুই যা খুন করছো আমার পরিবার মোর উপর বদলা নিবে।
तो इस दुनिया में भी उसको शांति नहीं है, अनंत काल में भी शांति नहीं है। তা উহার যারা অবিশ্বাসী তাই এই দুনিয়াতেও শান্তি পাবে না, আর অনন্তকালেও কোনো স্বর্গতেও শান্তি নাই। और वही वो 18 पद में भी ऐसा लिखा है कि और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, केवल उनसे ही जिन्होंने आज्ञा न मानी। আর ভগবান তোমরা মোর দেওয়া জীবনের জায়গা যাওয়ার পাবে না, তোমরা কি ওই মানছিলা যায় যায় অবাধ্য হইয়া বিরোধিতা করেছে। কোন 13 13 No, verse 18. আর ভগবান কাটতে কিয়া কাঠি কইছে যে উমরা মোর দেওয়া জিরানের জায়গা যাওয়ার পাবে না, উমরাই কি ওই মানছিলা যায় যায় অবাধ্য হইয়া বিরোধিতা করেছে। तो आगे क्या होता है पाप की वजह से, तो वो 13 पद में हमने पढ़ा कि पाप जो है वो हमको धोखा दे सकता है। আর আমরা বলছি যে পাপ যে আছে, পাপ আমাকে ধোকা দিবার পায়। तो देखो मैं वो दोबारा पढ़ रहा हूँ 13 पद। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। আর ইয়াছে বরং যতদিন যাচ্ছে মানসি আজি এই কথাটা কোয়া যায়, ততদিন তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও, যাতে তোমার কাঙর মন পাপের ছলনা পড়ি পাষাণ হইয়া না যায়। तो जो पाप के छल जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है कि डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, मतलब पाप जो है धोखा देता है। আর পাপ আছে যে পাপ ছলনা করে পাপ। और उदाहरण के लिए मैंने ये सचमुच में मैंने ये कहानी सुना, एक आदमी हमको बता रहा था कि मैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रहा था। আর একটা মানুষের কাছে আমরা একটা সত্য ঘটনা শুনছি যে পলিটিক্যাল রাজনৈতিক দলের সাথে যোগ দিবার গেছে। मैं पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो दिल और जान लगाकर उस पार्टी के पीछे वो काम किया। আর ওয়ার সেই পার্টির সঙ্গে মন আর শক্তি দিয়া কাজ করেছে। और जब भी वो रैली करते थे और लोग रास्ते पे चलते थे पार्टी के नाम पे, और उनका जो मुख्य व्यक्ति के नारा लगाते थे, वो सब दिल और जान लगा के वो करता था। আর তো ওয়াই সেই পার্টির কাজত গেছে, মিছিলত গেছে, যোগ দিছে, আর মন আর শক্তি একদম মন প্রাণ দিয়ে ওই কাজ করছে পার্টির জন্য। और वो पार्टी के लोग जो बड़े नेता लोग उसको बताते थे कि तुमको गैस मिलेगा, घर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, बहुत बड़े बड़े बातें उनको बताया था। আর সেই দলের নেতাগুলা কইছে যে তো গ্যাস মিলবে, গ্যাস পাবো, চাকরি পাবো, টাকা পাবো, তো এরকম আশা দিছে। लेकिन सालों साल वो काम किया उस पार्टी के लिए, लेकिन बहुत साल बाद उसको कुछ नहीं मिला। তো ওই বছরের পর বছর কাজ করছে সেই দলের জন্য, আর পরে ওই কিছুই পায় নাই। तो इस प्रकार का है वो पाप भी, ऐसा ही हमको धोखा देता है। তো এরকম করি পাপ যে আছে আমাকে ছলনা করে। पाप को बोलता है कि मैं तुमको खुशी दूंगा, আর পাপ যে আছে কয় যে তো আনন্দ দিবে, খুশি দিবে। मैं तुमको बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर बनाऊंगा, আর খুব বড় লোক করে দিবে। लेकिन पाप जो है सिर्फ हमको धोखा पे धोखा देता रहता है। কিন্তু পাপ যে আছে আমাকে ছলনার উপর ছলনা করে দেয়। और पाप और एक चीज करता है, जरा मेरे साथ प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और 23 पद को जरा देखो। प्रेरित 8 और 23। আর পাপ যে ধোকা দেয় এটা প্রেরিতের কার্য 8:23। মুই দেখির পালং যে তোর মন লোভ লালসাত
পাপে ভরে গেছে। हाँ, तो ऐसा लिखा है कि क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम पित्त के की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है, बंधन में पड़ा है। बंधन में पड़ा है। আর মুই দেখির পারং যে তোর মন লোভ লালসা তার পাপের ভরে গেছে, পাপের বন্ধনত আটকে গেছে। हाँ, पापेर बंधन में अटका गया है। तो पाप क्या करता है, हम लोगों को अटक कर देता है। আর পাপ যে আছে কি হামাক আটকে আটকে ফেলায়। और वो पाप का हम गुलाम बन जाते हैं। আর আমরা পাপের দাসত্ব হয়ে যাই। और ये उदाहरण हम लोग जानते हैं जो खास करके जो ड्रग्स पीते हैं। আর এটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি যে বিশেষ করে যায় ड्रग्स कोकेन खाए। तो ड्रग्स क्या करता है, एक तो हमको धोखा देता है। আর এই ड्रग्स नेशा जैसे जे हमा धोखा दे। थोड़े समय के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। আর কিছু দিনের জন্য প্রথমে খুব ভালো লাগে। लेकिन तुम्हारा दिमाग का, ब्रेन का अवस्था क्या है, दिन पे दिन खराब होता जाता है। কিন্তু আর আমার আর এটা ব্রেন দিনে দিন নষ্ট করে দেয় ব্রেন। और ठीक से मैं सोच नहीं पाऊंगा। আর ভালো করে আমরা চিন্তা করি পাবো না। ठीक से मैं गाड़ी ना चला पाऊंगा। আর ঠিক করে আমরা গাড়ি চলে পাবো না। ठीक से कोई भी काम पे मैं टिका नहीं रह सकता हूँ। আর কোনো কামত আমার মন বসবে না। और वो ड्रग्स क्या है, मुझे एक गुलाम भी बना देता है। আর সেই ড্রাগস আমাকে দাসত্ব একরকম দাসত্ব বানিয়ে ফেলায়। तो धोखा भी देता है और गुलाम भी कर देता है। আর কি ধোকাও দেয় আর দাসও বানিয়ে ফেলায়, গোলাম বানিয়ে ফেলায়। यही पाप का भी स्वभाव है। पाप हमको धोखा देता है और गुलाम भी बना देता है। আর এরকমই পাপের স্বভাব যে আমাকে ধোকাও দেয় আর গোলামও বানিয়ে ফেলায়। और इसलिए नौजवान लोग, हम लोग बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि ऐसे खराब चीजों में नहीं गिरना चाहिए। আর যুবক লোক আমার খুব সাবধান হওয়া দরকার এরকম পাপ এরকম পাপত না যেন না পড়ি। क्योंकि आंखों का अभिलाषा के पाप में हम गिर सकते हैं। আর আমরা এই চোখের অভিলাষাত আমরা পড়ে যাওয়ার পাই। शरीर के अभिलाषा के पाप में गिर सकते हैं। আর শরীরের অভিলাষার পাপে পড়ে যাওয়ার পাই। और जीवन का अहंकार, मतलब मैं बहुत ही महान बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ऐसा भी मैं पाप में गिर सकता हूँ। আর জীবনের অহংকার যে আমরা খুব বড় লোক এরকম পাপতেও পড়ে যাওয়ার পাই। तो ये सावधान, ये चेतावनी यहाँ लेखक हमको इब्रानी 3 अध्याय में दे रहा है। আর এই সাবধান চেতনা আমার ইব্রিয় 3 অধ্যায় যে লেখক দেছে। और ऐसा 3 और 17 में हम लोग ऐसे लिखता है, इब्रानी 3 और 17 में ऐसे लिखा है कि और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, क्यों उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोते जंगल में पड़ी रही। আর ভগবান 40 বছর ধরিয়া কার উপর বিরক্ত আছিলে, তোমরা কি সেই মানছিলে না হয় যায় পাপ করেছিলে আর যার মোরা দেহা নিধুয়া পাথরত পড়িয়াছিলে। तो उनके पाप के वजह से जो, देखो इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले। আর ইসরায়েলি লোক মিশর দেশ থেকে বাইরে আসছে। और परमेश्वर ने बोला तुम कनान देश में जाके तुम उस कब्जा करो और वहां तुमको जाके रहना है। আর ইসরায়েলি লোক কইছে যে তোমরা কানান দেশ যাও আর ওরে যায় বসবাস করো। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं किया। আর কিন্তু ওই ইসরায়েলি লোকরা সেই পরমেশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করে নাই। और इनका हृदय कठोर हो गया। আর উমার অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে। उनका हृदय जो है भ्रष्ट और अविश्वासी बन गया।
আর উমার হৃদয় ভ্রষ্ট আর অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, और इनका हृदय भटकने लगा। আর উমার মন চঞ্চল হয়ে গেছে, এটে ওটে ঘুরি ধরছে। उसके वजह से उनको उस जंगल में, मतलब वो मरुभूमि जो था, 40 साल वो लोग उनको घूमना पड़ा। আর এই বাদে উমরা সেই মরুভূমি 40 বছর ঘুরি ধরছে। और वहां उस मरुभूमि में उनके लाशें गिर गए, मतलब मर गया वहां पर। अभी हम लोग 17 पद में पढ़ा। আর সেই মরুভূমি উমার মরে গেছে, উমার লাশ পড়ে গেছে, तो মারা গেছে। वो लोग वहां मरना नहीं चाहिए था, वो कनान देश पहुंचना चाहिए था। আর উমার ওটা কিনা মরা 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 যাওয়ার মারা যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উম্মাক কোনানদের যাওয়ার উচিত ছিল। तो कभी कभी देखो, इस बात को समझने का कोशिश करो, कभी कभी मेरे पाप के वजह से मृत्यु भी जल्दी आ सकता है। আর কোন কোন সময় পাপের জন্য আমার মৃত্যু তাড়াতাড়ি চলে আসে। और ये सावधानी, ये चेतावनी लेखक हमको दे रहा है। আর এই চেতনা লেখক আমাক দেছে। और इन बातों को मैं सुनना चाहिए। আর এই কথাগুলা আমাক শুনি দরকার। और अगर मैंने ये चेतावनी मैंने सुना, तो मुझे क्या करना है? আর এই সাবধান চেতনা তো যদি শুনিছি, তো আমরা কি করি নেকবে? तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? তো আমার লক্ষ্য কি হওয়া দরকার? तो सबसे पहले वो 3 अध्याय और 1 पद में क्या लिखा है? আর 3 অধ্যায়ের এক পদত কি লেখা আছে? হে মোর পবিত্র ভাই বোনিলা, তোমরা যা যা স্বর্গের অধিকারী হবার বাদে উহার ডাক ছাড়া দিচ্ছেন, তোমরা যিশুর বিষয়ে মনোযোগী হও। हाँ, तुम अपने मन, क्या लिखा है हिंदी में, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। তোমরা প্রভু যিশুর বিষয়ে মনোযোগী হও আর উহার বিষয়ে ধ্যান করো। हाँ, तो आज हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। तो आदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट देखे नेब। देखो, हर रविवार को हम लोग आराधना में क्यों जाए? तो हमरा देखो, हम प्रति रविवार हम आराधना केने जाई। क्यों वहां पर रोटी तोड़ते हैं और प्याला लेते हैं? और केने हमरा ओरेगना रोटी भांगी और पेयाला भाग नहीं। क्या कारण है हर रविवार को उसी प्रकार से हम लोग करें? কি কারণে আমরা প্রতি রবিবার সেই এরকম করি? क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र के बारे में हम लोगों को याद दिलाता है। কেননা ওরেগনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের চরিত্র আমার মনে পড়ে। कैसे प्रभु यीशु মনে পড়ে मसीह, যায়। उसका नम्रता को हम लोग याद करते हैं वहां पर। আর উহার নম্রতা আমরা মনে করি। और क्या क्या अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया, उन चीजों को दोहराते हैं, याद करते हैं और उसको सिखाते हैं। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে কি কি অদ্ভুত কাজ করছে সেগুলো আমরা দেখি আর শিখি এবং শিখাই। तो इसलिए हर रविवार सभा में उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी है। আর এই বাদে প্রত্যেক রবিবার সেই সভা উপস্থিত থাকাও খুব দরকার। और प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট ধ্যান করাও খুবই দরকার। और क्या चीज हम लोग ध्यान करेंगे, वो 2 पद में लिखा है। আর কি জিনিস আমরা ধ্যান কর্ম, এটা जो 2 পদত লেখা আছে। हाँ, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। আর যা যা উহা নিযুক্ত করেছে সেই ভগবানের উহাই বিশ্বস্ত আসিলে। वो विश्वास योग्य था, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট বিশ্বাসযোগ্য ছিল। और एक शब्द जो हम लोग जानते हैं, वो वफादार था, हर चीज में सही
चीज से सही तरीके से उन्होंने काम किया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট আহ, আহ, বিশ্বাসী ছিল, খুব ভালো, সঠিক সঠিক কাজ করির বাদে। देखो, अगर किसी चीज को मुझे मुझे अगर घर को बनाना है, আর যদি মোক ঘর বানায় নাগে, मैं कैसे व्यक्ति को मैं अपना पैसा और वो काम दे दूंगा? আর আমরা কেমন লোক সেই টাকা আর কাজের ভার দিব? कैसे आदमी जो है वो मेरा घर बना सकता है? আর কেমন লোক যে আমার এই মানে ঘরটা বানিয়ে পাবে? जो विश्वास योग्य है उसी को मैं मेरा पैसा और ये जिम्मेदारी में दे सकता हूँ। আর যার বিশ্বাসযোগ্য আছে উহাকে আমার টাকা আর আর এই ভার উহাকে বোঝ দিমু, কাজের দায়িত্ব। और इसलिए सवाल ये भी है, अगर परमेश्वर किसी चीज इस दुनिया में करना है, क्या परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य समझता है? আর কোনো কিছু যদি এই দুনিয়াত করি নাকি, যে আমরা কি আমাকে যদি দেয় তো আমরা কি বিশ্বাসযোগ্য আছি প্রভুর চোখত? और क्या वो जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे सौंप सकता है? কি সেই দায়িত্ব প্রভু আমাক দিবার পায়? क्या मैं विश्वास योग्य व्यक्ति हूँ इस दुनिया में? কি আমরা সেই বিশ্বাসযোগ্য মানসি এই দুনিয়াত? ये सवाल हम अपने आप से करना चाहिए। তো এই প্রশ্নগুলো আমাক নিজেকে নিজে করি নাকি और দরকার। 6 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, আর 6 পদত আমরা এরকম পড়ি, पर मसीह पुत्र की नाय उसके घर के अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। আর সেই খ্রিস্ট সেই ঘরের দায়িত্ব পায় বেটা হিসেবে বিশ্বাস হামাল্লার নিশ্চিত আসার ফলে মনের যে আশা আর আনন্দ আইসে উহাতে যদি শেষ পর্যন্ত স্থির থাকি তাহলে দেখা যায় যে আমরাই ভগবানের ঘর। हाँ, शेष पर्यंत स्थिर, ओके, मतलब अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। শেষ মানে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় দৃঢ় একদম খুব শক্ত করে স্থির থাকি নাকি। मतलब मेरा विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए। যে আমার বিশ্বাস যে আছে সেটা এরকম উথাল পাতাল যেন না হয়। ये बाइबल जो हमारे हाथ में है यही परमेश्वर का वचन, इस दृढ़ता से मैं इस पर खड़ा रहूंगा। আর এই বাইবেল যে আছে সেই পরমেশ্বরের বাক্য, এই এই বাক্যের উপরে আমরা দৃঢ়র সঙ্গে खड़ा থাকবো। कॉलेज में शायद वो सिखाएगा कि एवोल्यूशन, मतलब आदमी जो है बंदर से आया करके ऐसे चीजें वो सिखाएंगे। আর কলেজত যে শিখায় মানসি বান্দর থেকে যাচ্ছে। इस प्रकार से बहुत सारे गलत शिक्षा है दुनिया में। এরকম করি অনেক খারাপ শিক্ষা আছে এই দুনিয়া। लेकिन मैं उन चीजों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं बाइबल पवित्र शास्त्र पर विश्वास करूंगा। আর আমরা সেই বিষয়ত আমরা বিশ্বাস করবো না, আমরা এই বাইবেলের উপর বিশ্বাস করবো। तो इसको कहते हैं दृढ़ता से इसके ऊपर स्थिर रहना। আর এইটাকে কয় সেই জোরের সঙ্গে প্রভুর উপর বিশ্বাস থাকা। और उसी पद में ये भी लिखा है कि मैं मेरे ऐसा लिखा है कि अपनी आशा के घमंड पर घमंड करूंगा, मतलब वही 6 पद में मेरा विश्वास के बारे में मैं घमंड करूंगा। আর আমরা আমার বিশ্বাসের উপর অহংকার করবো। तो जिस प्रकार से अगर तुमने एक नया मोबाइल खरीदा, যেরকম করে আমরা একটা নতুন মোবাইল কিনেছি যদি, तो मैं अपने सारे दोस्तों को जाके दिखाऊंगा, देख मैंने एक नया मोबाइल खरीद दिया। তো আমরা আমার বন্ধুগুলাকে যায় দেখাবো যে দেখো মুই একটা মোবাইল কিনছুম। तो एक प्रकार का घमंड से मैं अपना नया चीज को मैं दिखाता हूँ।
তো এক প্রকার আমরা অহংকারের সাথে গর্বের সাথে আমরা নতুন জিনিসও অন্য কাউকে দেখাই। लेकिन क्या मेरे विश्वास के बारे में उसी प्रकार से मैं घमंड कर सकता हूँ? কি আমরা আমার বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে এরকম গর্ব করি ভাই? क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ प्रार्थना का उत्तर मेरे जीवन में दिया और उस प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद मैं अपने दोस्तों को जाके बोला मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिया। तो इस प्रकार से क्या मैं घमंड कर रहा हूँ? কি আমরা বন্দুক কবার পাই যে আমরা এইটার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে ধরছি আর প্রভু আমাকে উত্তর দিছে, এইটা কথা কয়ে আমরা কি গর্ব করি ভাই? तो इस प्रकार से विश्वास के बारे में हमको घमंड करना है। এইরকম করি আমরা বিশ্বাসের জন্য আমরা গর্ব করা উচিত। और वो 13 पद में ऐसा लिखा 3 का 13 में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। আর 3:13 এরকম সে ইহার চেয়ে বরং যতদিন মানসি আজি এই কথাটা কয়া যায় ততদিন তোমরা একে অপরক উৎসাহ দাও। उत्साह दाओ, एक दूसरे को उत्साह देना चाहिए। আর একজন অন্যজনক উৎসাহ দেওয়ার দরকার। और बादल और जयव्रत आप दोनों को विश्वास के बारे में उत्साह दे सकते हैं। আর আমরা একে অপরক উৎসাহ দেওয়ার ভাই বিশ্বাসের জন্য। और ये बहुत अच्छा है कि मैं किसी दूसरे भाई को उत्साह देना चाहिए। আর এটা খুবই ভালো যে আমার অন্য ভাইও একটা উৎসাহ দেওয়া দরকার চাই। और देखो ये यहाँ पर हमने एक फोटो लगाया है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। আর একটা ফটো এই স্ক্রিনে দেওয়া হয়েছে। और ये कहानी आप गणना का 14 अध्याय में आप पढ़ सकते, 13 और 14 अध्याय में। আর এটা গণনা পুস্তকের 13 আর 14 অধ্যায়ে পড়ি পাবেন। तो वहां पर मूसा ने 12 लोगों को कनान देश पर भेद करने मतलब जासूसी करने के लिए उनको भेजा था। আর মসি সেই 12 জনক কনান দেশত যায়া भेद करने के लिए या जासूसी करने के लिए भेजा था। वो जमीन कैसा अच्छा है या बुरा है देखने के लिए। তো লোক পাঠাইছে যাচাই করার জন্য 12 জনক পাঠাইছে কোনান দেশত। और वहां से जब लौटे तो उनके हाथ में आप फल देख रहे हैं, अंगूर के फल है और बहुत सारे फल वो वहां से उस देश से वापस लेकर आए। আর সেই 12 জন সেই কোনান দেশ থেকে যেলা ফিরে এসেছে সেলা হাতত করে বড় বড় আঙ্গুরের ঝোপা কোলা অনেক ফল মূল সেই ঝোপা ধরেছে বাঙ্কত করে। सबने बोला जमीन तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा जमीन है, अच्छा फल वहां मिलता है। আর সবাই কইছে যে জমি খুব ভালো আর অনেক ভালো ভালো ফল পাওয়া যায়। लेकिन वहां राक्षस रहते हैं, वो राक्षस बहुत लंबे लंबे कद के लोग हैं और उनको हम मार नहीं सकते हैं। আর কিন্তু ওটা কিনা বড় বড় রাক্ষস থাকে আর যেগুলা রাক্ষসকে আমরা খুব বড় বড় মারি পাবো না। तो केवल 2 जन जोशुआ और केलब ने बोला हम उन राक्षसों को भी हम मार सकते हैं। আর কিন্তু 2 জন কেবল যশোয়া আর কালেব কইছে যে আমরা ওই রাক্ষসগুলাকেও মারি পামু। लेकिन बाकी के 10 लोगों ने बोला हम नहीं मार सकते हैं। আর কিন্তু বাকি 10 জন কইছে যে আমরা মারি পামু না। जिसके वजह से पूरे इस्राएली लोग मूसा के विरोध में बोलने लगा और परमेश्वर के विरोध में बोलने लगा। আর এই বাদে পুরা ইসরায়েলি লোক আর বাকি 10 জন মোশের বিরুদ্ধে আর परमेश्वरेर বিরুদ্ধে কথা কবার ধরছে। तो क्या हो गया वहां पर उस दिन परमेश्वर का क्रोध भटक उठा इस्राएली लोगों के ऊपर। সেই দিন কি হয়েছে परमेश्वरेर রাগ আর ওগুলা লোকের উপর বাড়ি গেছে। और वही इब्रानी 3 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस दिन जब परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया, तुम अपना हृदय कठोर मत करना। ওই দিন परमेश्वर সেই ইসরায়েল লোকগুলা ক্রোধ দেখাইছে তার জন্য কয় যে তোমরা তোমার হৃদয় পাষাণ না করেন।
तो हम लोगों को क्या करना, अगर आज तुमने परमेश्वर का वचन को सुना, আর আজই যদি আমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুনি পাই, तो वहाँ गणना का 14 अध्याय 17 पद में हम लोग वहां पढ़ते हैं कि मूसा ने प्रार्थना किया। আর গণনা পুস্তকের 14 অধ্যায় 17 দেখি পাই যে মসি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं কি আমরাও প্রার্থনা করি পাই, और वहां से परमेश्वर से क्षमा हम मांग सकते हैं। আর ওটাকে না পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা আমরা চাবার পাই। और वही गणना 14 अध्याय और 18 पद में ये भी लिखा है कि परमेश्वर है जो कितना दया और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। আর গণনা 14 অধ্যায় 17 অধ্যায় ওখানে দেখাইছে যে পরমেশ্বর কত দয়াবান আর কত ক্ষমা করে। तो वो आज भी आपको इस प्रकार से माफ और क्षमा दे सकता है। আর আজিও আমাক ক্ষমা আর মাফ প্রভু করিবে। तो वही वो चाहता है कि आज अगर आपने उसका आवाज आज सुना तो उसे माफी मांगो, तो वो आपको क्षमा कर देगा। আর আজি এটাই কয় যে যদি আমরা পরমেশ্বরের আওয়াজ শুনছি তো আমরা ক্ষমা যেন চাই এবং প্রভু ক্ষমা করবেন। और यही बातें जो है ये इब्रानी 3 अध्याय में लिखा गया है। আর এই কথাগুলো ইব্রিয় 3 অধ্যায়ে লেখা হয়েছে। और हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। আর আমরা আজ এটাকে শেষ করবো। আর শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।